अस्सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स। खुश आमदीद। क्रिकेट क्लिनिक के साथ साइम कश्मीरी, आसिफ अहमद और मुदस्सिर मिर्जा आपके साथ हाजिर हैं। आप काफ़ी देर बाद आपके साथ दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। इस दरमियान एज वी ऑल नो, वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय टीम पाकिस्तान इन चैंपियंस ट्रॉफी। Although this was a trophy, this was a championship that we were hosting, but it couldn't have gone worse for us in the sense के जो दो हमारे crucial games थी against New Zealand and against India, both of them we lost. And in fact, we only got to play one game on home soil, that against New Zealand. बांग्लादेश वाला आपका आपको पता है वॉश आउट हो गया। इंडिया से वी लॉस्ट इन दुबई। सो ऑल इन ऑल, यू नो, very very disappointing, disheartening couple of weeks, the last couple of weeks. थोड़ी बात करेंगे इसके ऊपर कि where do we go from here. First we'll kind of analyze, where we went wrong, what are sort of the things that we need to focus on, because of course, I mean, while this is very disheartening, again, this is not the end of the world. The format is such where you can't actually, you have to have a good momentum right from the start, and you lose two games, you're out. So while we're all obviously very disheartened, लेकिन हमें आगे भी देखना है, हमें सोचना है कि हम अपनी क्रिकेट को किस तरह आगे लेके जा सकते हैं। वे डू वी गो फ्रॉम हेयर? तो पहले बात कर लेते हैं अबाउट, लाइक, लेट्स टॉक अबाउट अ जनरल इम्प्रेशंस। जो दो गेम्स हम हारे हैं, इसमें आप मेन जो आप एरियाज देखते हैं वो क्या देखते हैं? सो लेट मी आस्क माय पैनलिस्ट, कौन आप में से स्टार्ट करना चाहेगा, आसिफ या मुदस्सिर? आप, वे वुड यू लाइक टू स्टार्ट एंड टॉक अबाउट योर बिग पिक्चर इंप्रेशंस ऑफ वे वी वेंट रॉन्ग इन द चैंपियंस ट्रॉफी? I can go just, I'll talk more about it in general, then with us I can talk about Pakistan because Assalamu alaikum everybody and Ramadan Mubarak as well. So I just want to say first and foremost, look, congratulations to India. They beat everyone and they won quite comfortably. And yes, we can say they had the easiest schedule. They did not have the travel problems. They knew the ground better than anybody. They had so many advantages that other teams did not have. At the same time, they still won just about every one of their matches without any real difficulty. And I mean, I do think, as much as a Pakistan fan is pained to say, they were the best team in the tournament. So congratulations to them. I also want to say, not the Pakistan team, but congratulations to Pakistan for being able to host a successful, multinational tournament for the first time in almost 30 years. Remember the dark days of 2009 when we had the terrorist attack, and we never thought Pakistan cricket would come back. So this was a hugely successful tournament that was staged in Pakistan at Gaddafi Stadium, National Stadium, not much in Pindi, but crowds came out for non-Pakistan matches. It was a really great atmosphere. And I think overall the impression was a very positive one from almost everybody who came and visited Pakistan. So that's great. I do want to say one thing for India. I think this was an absolutely huge, huge missed opportunity for them. And what I mean by that, look, I'm an old man. I always reminisce about old matches. So I'm going to go back to 1999 when Pakistan played this amazing test match in India in Chennai, which most of you will remember. We all have matches that are signature in our minds. And this was the one where Tendulkar was on the verge of bringing India to a memorable victory. And Saqlain Mushtaq got him out at the end, and Pakistan won. And what happened was phenomenal at that point is that because it was such a great match, the crowd appreciated the quality of the cricket, the quality of the competitiveness of both sides, that this Pakistan team on Indian soil did a lap of honor. And that was a memorable thing. Like, who would have ever thought that? And not only that, when that stadium in Chennai was renovated decades later, they had murals to highlight the greatest moments in that ground. And they actually have a mural of the Pakistan team doing that lap of honor. So it was a great, great moment. And this is where I think India really missed a trick. As many Indian fans who obviously don't like Pakistan, I think the satisfaction of winning a trophy like that on Pakistan soil, they did not have that. We had that in the Nehru Cup. I will never forget that. We've had that in other opportunities as well, and they deny themselves that opportunity. I think also, या सॉरी, for एक चीज मैं आपको इसमें कहूँ कि ah, अगर ऐसे कम तो उनको काफी यहाँ से वार्म वेलकम भी मिलना था, जो आपने this is the देखा था second कि thing I यहाँ was पे। going to say. This is the last thing I was going to say is that Pakistan fans really, really support the Indian cricketers. They've never seen Virat Kohli live.
the excitement of a Hardik Pandya. I think the Indian cricketers would have had huge support and very easily could have done a similar lap of honor on Pakistan soil. It would have been a memorable moment. And, it's sad because lots of times you think sports will transcend politics. And in this situation, the opposite happened. I think it was a huge, huge missed opportunity for India. And at the end of the day, they just have white jackets with the word Pakistan emblazoned across it. So that's the way it is for them. Yeah, and no Pakistani representation also, I think, Yeah. in the end. Yeah. जो कि मुदस्सिर, आप क्या कहेंगे ओवरऑल, आपकी बिग पिक्चर? सो आसिफ ने एक ओवरऑल आपके बात की है, और जाहिर है कंग्रेचुलेशंस दिए हैं इंडिया को, वी ऑल एग्री दे वर द बेटर साइड। ठीक है, एडवांटेज था उनको कुछ कंडीशंस का, बट स्टिल दे वन कॉम्प्रिहेंसिवली। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो कहाँ पे हम, ऑब्वियसली, अगेन दीज आर टफ कंपेटिटर्स। जो दो जिन टीमों से हम हारे हैं वो फाइनलिस्ट भी थी। Finalists, तो yeah. ये ऐसी नहीं है कि हम बांग्लादेश से हार गए या हम किसी और टीम से हार गए। सो बट आई थिंक आप अग्री करेंगे कि इट्स नॉट जस्ट लाइक लूजिंग, बट जस्ट जो हमारा एक अप्रोच हमें नजर आई है दो गेम्स में, अ वेरी टिमिड अप्रोच न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ठीक है, पहली तो बात है कि एट वन स्टेज इट वाज लुकिंग लाइक 270 280 तक रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, हमने ज्यादा रन दे दिए। और उसके बाद जिस तरीके से हमने वो अपनी अप्रोच की, ठीक है, उसमें फखर जमान इंजर हो गया, लेकिन लगा नहीं कि यार दे आर फाइटिंग। क्योंकि एज फैन जो आई थिंक ज्यादा हमें हर्ट करती है चीज, वो ये नहीं है कि हम हार गए, बट अगर आप जज्बा नहीं दिखाओगे, अगर आप यू डोंट प्ले टू योर पोटेंशियल, वो ज्यादा हमें हर्ट करती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? अग्री करते हैं आपसे कि ये अप्रोच का ज्यादा मसला नजर आया? नहीं, आई थिंक वो वैसे तो वो रिजवान भाई बोल रहे हैं कि विन या लर्न है, मगर प्रॉब्लम ही यही है कि जीरो लर्निंग है 5 साल से। ये इंडिया ने जो जीता है अभी टूर्नामेंट, इट वाज वेल डिजर्व, क्योंकि इंडिया के साथ मेरे ख्याल से 2017 से शुरू हुआ था, बल्कि शायद एक आध साल पहले, एक आध टूर्नामेंट पहले, दे यूज्ड टू बी अनबीटन एंड दे यूज्ड टू गेट आउट एंड नॉक आउट। तो 17 में भी वो अनबीटन थे, सेमीफाइनल में बाहर हुए थे। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में, फिर अभी T20 जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें दे वर अनबीटन, फाइनल में हार गए थे। फिर T20 में भी आई थिंक दे वर अनबीटन, और इसमें भी अनबीटन। सो एक तो अनलकी तब थे जब वो हार जाते थे। तो प्रोसेस पेज इन द एंड। हमारे में क्या है कि क्रिकेट चेंज हो गई है पिछले 7-8 साल में, और इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉरवर्ड वी आर गोइंग बैकवर्ड्स। और प्रॉब्लम हमारे यहाँ तब ओवरऑल खिलाड़ी तो यही है, वो हम आगे बात करेंगे। होलसेल चेंज करने से टीम ठीक नहीं होती। मैं देख रहा था कि 150-240 वाला जो गेम था, उसके 8 या 7 प्लेयर खेले हैं अभी जो जीती है टीम। इसका मतलब ये कि उन्होंने टीम नहीं चेंज की, यू ट्वीक द टीम। वरुण चक्रवर्ती वो पाकिस्तान से पिटा था, वो सरप्राइज खिलाया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो 4 साल खेला ही नहीं, उसके इतना बुरा उसको इम्पैक्ट था कैरियर। बट ही इज इंप्रूव्ड क्वाइट अ लॉट, डोमेस्टिकली भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है वो। हाँ, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि पूरी टीम उठा के चेंज कर दो, ऐसे नहीं होता। प्रॉब्लम होता है कि स्ट्रेटेजी हमारी जीरो है। जब बाबर कैप्टन था, हम यही कहते थे यार ये कोई ओडीआई वर्ल्ड कप से शुरू हुआ था कि यार कोई स्ट्रेटेजी है, ये कौन सिलेक्ट कर, मतलब लगता है कोई सेंस नहीं है ना, कोई सर है ना पैर है। अबरार बेंच पे बैठा रहा 2 साल, आगा सलमान बैठा रहा है, अब जाके ओडीआई डेब्यू हुए हैं इन लोगों के। अभी तक अब्बास आफरीदी का ओडीआई डेब्यू नहीं हुआ। वसीम जूनियर और धानी को उन्होंने ना वो रॉ, जैसे नहीं जंग जोड़ दिया, बोलते जंग लगा दिया, उसको धानी को बिठाया, उसको जलील किया जब, और उसको वेस्ट करके टीम से बाहर निकाल दिया। तो न्यूजीलैंड इंग्लैंड की, इंडिया की स्ट्रेंथ ये थी कि न्यूजीलैंड खिलाती है टीम पर कंडीशन, और दे वर द मास्टर्स ऑफ इट। अभी भी वो इंडिया को उन्होंने स्पिन में हराया है टेस्ट मैच में, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। ये पहली दफा है कि न्यूजीलैंड इज द नंबर 1 टीम अगेंस्ट स्पिन बाय द वे। और इंडिया नहीं थी, पाकिस्तान सेकंड था और न्यूजीलैंड नंबर 1 थी टू हाउ टू प्ले स्पिन। तो न्यूजीलैंड अपने ए गेम नहीं कर पाई इंडिया के अगेंस्ट। फिर इंडिया के तुम देखो कि मैं दूंगा क्रेडिट के दे हैव द बेस्ट रोटेशन नाउ। इंग्लैंड ने शुरू किया था रोटेशन कि बेंच लंबी करते हैं, इंग्लैंड हैड लॉट ऑफ बैट्समैन। तो इंडिया इस तरह रोटेट करता है कि उनके पास 2 टीमें हैं अभी। अगर इंडिया की जो बेंच से भी खिला देना तो वो आधी टीमों को प्रॉब्लम देगी। बल्कि कुछ मेरे 2-3 खिलाड़ी तो मेरे फेवरेट हैं जो जो खेले ही नहीं है, जो होने चाहिए थे टीम मैं भी आपका
तो हमारी हमारी रोटेशन बिल्कुल ही सड़ी हुई है। हम मतलब हम रोटेशन इस तरह खिलाते हैं जानबूझ के बस खाना पूरी करें। एक और एग्जांपल है, वो उमैद बिन यूसुफ का नाम सुना होगा, इज अ टेस्ट अब प्लेयर। अभी अभी वापस आ गया, T20 स्क्वाड में रख लिया उसको न्यूजीलैंड में। उसका रिकॉर्ड ही नहीं है भाई, T20 का प्लेयर ही नहीं है वो। इज अ हाँ, टेस्ट प्लेयर, ठीक है, मैं हम्म, यही कह रहा हूँ ना कि बकवास लॉजिक है यही कि इस तरह खिलाओ कि ये फेल हो, और घूम फिर के वो 6-7 लोग दे जस्ट रूल द टीम। इसी तरह हसीबुल्ला का T20 का रिकॉर्ड ही नहीं है। हसीबुल्ला को एक ओडीआई खिलाया है, और इज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर, और वो भी शॉट्स उसके अच्छे लगते हैं। मगर तो खैर वो लंबी बात हो जाएगी। जो रोटेशन हमारी कचरा है बिल्कुल ना, हम बकवास करते हैं। वी जस्ट अभी भी तुम देखो कुछ सर पैर नहीं है रोटेशन का। दूसरा ये है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। मुझे कोई बताया कि ये एक स्पिनर से दुबई में मैच खेले किस तरह है। हम्म, जिसका भी आइडिया था, ही नीड्स टू गेट फायर्ड। अगर और हम्म, मेरे ख्याल में रिजवान इतना बेवकूफ नहीं है, मेरी समझ से बाहर है। वो इंडिया 4 स्पिनर खिला रहे हैं, हम 5-4 पेसर लेके जा रहे हैं। मतलब हम्म। इट्स इडियोटिक यार। तो नहीं, दूसरा जब फखर जमान इंजर हो गया था उस वक्त भी हमारे पास चांस था कि हम रिप्लेस करने के बजाय इमाम को लेकर आते, हम एक स्पिनर एक्स्ट्रा डाल लेते और उस्मान खान से कहते कि ओपन कर लो। यार वही उस्मान ना, खान तो खेला हुआ है ना आपको उधर मैच दुबई तो में। होती है ना। साइम और फखर जब इंजर हुए ना, टूर्नामेंट वो खत्म हो गया था। हम लोग मुझे हम याद है, मैं बोलता भी था कि हम्म, अगर साइम फखर दोनों खेलेंगे तो शायद हम इंडिया को हरा दें। और अगर ये दोनों नहीं है तो मेरे जहन में तो कोई वो था नहीं। आई वाज प्रीटी क्लियर कि ये विल बी अ डिजास्टर, क्योंकि टीम बैलेंस आउट है। अब हम्म, इसमें प्लेयर्स को लोग गालियां दे रहे हैं, कोई कह रहा है इसको निकाल दो, फलाने को निकाल दो। भाई जब तुम्हारी टीम was सेट अप फॉर अ डिजास्टर, वो जीतने वाली टीम ही नहीं थी। अब हम्म, फॉल्ट किसका है, आई डोंट नो। अभी देखो यार, अब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को, अब जैसी भी टीम है हमारी, साउथ अफ्रीका को पिछले 4 बैक टू बैक ओडीआई हराए हुए हैं, और क्लोज गेम्स हुए हैं। 3 साउथ अफ्रीका में, एक पाकिस्तान में, जिसमें क्लासन हम्म, ने 80-80 किए हैं, तब भी जीत गए हम लोग। और हम्म। ऑस्ट्रेलिया में भी जीते। इसका मतलब है कि वो टीम सही खेली थी, पोटेंशियल पे सिलेक्शन टीम थी, और कैप्टनसी अच्छी थी, जब भी तो वो दो बड़ी सीरीज हैं। अभी जो आजकल ये अलग मजाक चल रहा है, ये जो 90s के प्लेयर, याद है, हम लोग भी मजाक उड़ाते थे हाँ, यार, ये हाँ, इन लोगों को निकालो। हम लोग, मैं तो कब से भी कह रहा हूँ, वो लोग नहीं जीते थे साउथ अफ्रीका में कभी यार, वसीम अकान नहीं हम्म, जीते। तो हम्म, तो इसको ना, या अब फिर दो इतनी अच्छी सीरीज खेल के आए रिजवान, अच्छी टीमों से हारे हम लोग, उसमें फ्लॉस थे टीम में, फिर रिजवान को फिर हटा दिया। तो प्रॉब्लम यही है कि इट्स लाइक अ सर्कस। जब कुछ अंदर बाहर, जैसे एक जमाने में मुझे याद है, आमिर, इमाद वसीम को पीक पे निकाला था व्हेन दे हैड द लोवेस्ट इकोनॉमी इन T20, आज से 4 साल पहले। फिर टेस्ट में कुछ खिलाड़ी निकाल दिए जो रन कर रहे थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट का तुम 4 साल से देखो ना, इट्स खिलाड़ियों से ज्यादा पूरा सिस्टम ही केओटिक है। पता नहीं, एक दर्जन चेयरमैन, आधा दर्जन चेयरमैन, हाँ, I can give you the numbers. 30 सिलेक्टर्स, मतलब हाँ, हाउ कैन यू कैन नॉट प्ले लाइक दिस। क्रिकेट इज साइंटिफिक नाउ। इंडिया को तुम देखो, मैं वही बता रहा हूँ ना, 7 प्लेयर वन वही इसी गेम में खेला है, 152 फॉर 0। KL राहुल को ओपनर से 6 पे लेके आए। उनकी फील्डिंग इज कीप गेटिंग इज इम्प्रूविंग, उनकी फील्डिंग फिटनेस इज गेटिंग इम्प्रूव्ड। तो उनका सिस्टम, इंडिया एक्चुअली इज अ लाइक अ प्ले बुक नाउ कि भाई हाउ टू इम्प्रूव योर क्रिकेट। well, just to quickly add to elucidate the point Mudassir was making, in the past 3 years, Pakistan cricket has had 4 chairmen, 8 coaches, 4 captains, and 26 selectors. So you have zero stability at the top. Yeah. Everyone comes and brings their own philosophy. Everyone blames the previous team. Even now, you have Akib Javed blaming Gillespie, Gillespie fighting back at him. So, what do you expect is going to happen when there's such a complete lack of stability at the top? So, it is a circus, like he says, you know. राइट, राइट। अच्छा, चलें थोड़ी सी अब माइक्रो बात कर लेते हैं। तो बिग पिक्चर आपने बात कर दी, ओवरऑल आप क्या कहेंगे आउट ऑफ द 3 डिपार्टमेंट्स, वे डिड बी, अगर हम एक इम्प्रूवमेंट की बात करें? यस, वी हैव बीन क्वाइट डिसअपॉइंटिंग। इनफैक्ट वो तो 2 गेम्स तो हैं ही हैं, उससे पहले जो हम एक ट्राई नेशन सीरीज भी खेले थे उसी से हमें आइडिया हो गया था। आई मीन लूजिंग फ्रॉम न्यूजीलैंड थ्राइस, 3 दफा हम लगातार हार रहे हैं उनसे, और बड़े कन्विंसिंगली हार रहे हैं। तो कहाँ पे आप एक तो जो चीज जो आप रेफर कर रहे हैं, जो हम साउथ अफ्रीका में जीते और ऑस्ट्रेलिया में जीते, उसमें हमारी बॉलिंग बड़ी क्लिक कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया में तो स्पेशली वी वर बॉलिंग दम आउट अंडर 200। खैर वो आपकी Mhm. पिचेस भी डिफरेंट थी, कंडीशंस भी डिफरेंट थी। बट इवन साउथ अफ्रीका जहाँ पे हाई स्कोरिंग ग्राउंड थे, उसके अंदर भी हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। वी डेंट लेट देम स्कोर 300, 260, 270 के अंदर अंदर हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या एक चीज हो रही है कि 350 हमें रन्स पड़ रहे हैं, 330 पड़ रहे हैं। देयर वाजंट इवन अ सिंगल गेम जिसमें हमने अंडर 300। माना कि आपके पाकिस्तान के अंदर ज्यादा रन्स बनते हैं, लेकिन
आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, आपको अफगानिस्तान ने जिस तरह आप इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट किया है। हम्म। बॉलिंग में आप क्या कहेंगे, व्हाट इज गॉन रॉन्ग सडनली? ये वही बॉलर्स हैं आपके, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, डू दे डिपेंड सो मच ऑन द पिचेस कि जब पाकिस्तानी पिचेस पर परफॉर्म नहीं कर पाते ये लोग? यार कंडीशन कंप्लीटली डिफरेंट थी और फर्क पड़ता है। तो अगर तुम याद करो साउथ अफ्रीका में सुफियान मुकीम और इब्रार दोनों खेले हैं शायद एक मैच। हम्म। सुफियान मुकीम ने आउट किए हैं, ऑल्दो उससे कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, मगर वो लेफ्ट आर्म चाइना मैन है तो वो ऑड उसकी बॉल, खतरनाक बॉलर होते हैं वो, जिसे खैर वो तो पुराना बॉलर है इंडियन जो है, मगर ही कैन बी डेवलप इन अ गुड बॉलर। तो यार तो स्पिनर थे यार, सुफियान मुकीम, अबरार था, और कंडीशन ऑफ कोर्स कंडीशन से फर्क पड़ता है। अभी अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो बैटिंग लाइनअप है ना, वो डिजाइन है ही नहीं 350 की, और उसका रीजन ये है कि ऊपर से हम पावर प्ले में एडवांटेज नहीं लेते। फाइनली साइम, और ये भूल के जितने मैच जीते हैं उसमें साइम क्लिक लकीली ऑल वनडे में ना, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में तो ही वाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हम्म। तो पकड़ चलता है तब भी हम जैसे एक जो हाईएस्ट चेस किया है हम्म। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 350 या 340, उसमें हम्म। फखर ने स्टार्ट दे दिया था। वो जिस हम्म। तरह शर्मा देता है, जब आपको हम्म। स्टार्ट मिल जाता है 70-80 रन का, देन यू कैन क्या चेज। पावर प्ले में 90 रन थे हमारे, तो काफी फर्क पड़ गया था आपका। तो टीम जब आप फखर साइम है ही नहीं, और आप इमाम प्लेयर अच्छा है, मगर जब इमाम और बाबर ओपन कर रहे हैं कोई भी XYZ, तो आप सेट, आपकी टीम में वो पावर नहीं है कि वो इतने हम्म। रन करेगी। तो टीम हमारी है नहीं 350 वाली। और तुम अपने स्कोर देखो अभी क्या बना है पाकिस्तान में। वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हारा है 350 करके, फिर न्यूजीलैंड ने 360 की है साउथ अफ्रीका को। तो क्रिकेट चेंज इस लिहाज से भी हुई है कि अगर विकेटें थोड़ी कंडीशन अच्छी हो T20 में या और ODI में, वो जो ODI में तो लॉ ही ऐसे है ना, दो नई बॉल है, पावर प्ले इतने लंबे हैं, तो 300 तो मिनिमम हो गया है ना स्कोर। अब हमें अपनी वो दो तीन, या तो फखर साइम दोनों होते ना, और एक पीछे पावर हिटर, एक दो, जैसे खुजल अच्छा खेल रहा था, मगर एक दो पीछे हो और एक ऊपर हो, और बीच में बेशक आपके पास बाबर हो या कोई भी हो, तो टीम बेहतर हो जाएगी अगर स्टार्ट अच्छा मिलता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि हमारी टीम 350 वाली है ही नहीं। दूसरा ये कि फिर सिलेक्शन ऑफ थी। अब आप चार पेसर, वन स्पिनर, ये कौन सी टीम है यार? अब इंडिया में तुम देखो बैलेंस ये होता है कि ऑलराउंड बॉलिंग ऑलराउंडर होना चाहिए। अब हमने उन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने ये सोचा था कि एक स्पिनर खिला लिया बरार, और बाकी ओवर हम उससे करा लेंगे Part time spinners. खुशदिल से, या खुशदिल से, आप हाँ। सुना तो कुछ दिन ज्यादा ओवर किए। खुशदिल उस क्वालिटी का बॉलर तो नहीं है ना, जडेजा जैसा क्वालिटी का बॉलर तो नहीं है वो। खुशदिल जो है वो कोई स्टॉक बॉलर है थोड़ी है वो, बस वो रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, मगर वो विकेटें जब नहीं मिलेंगी आपको तो वो तो मारेगी अगली टीम, वो मिडिल में विकेटें ही नहीं मिलती हैं। इंडिया में अक्षर पटेल है या जडेजा है या आपका, ये दे आर बॉलर फर्स्ट, बैटिंग तो उनका प्लस बट होता है ना। बट वो तो फिर तो हमारी रिसोर्सेज की कमी है ना, कि आई डोंट सी एनीवन इन पाकिस्तान सर्किट के जो उस तरह के लेवल का ये हो। गलत है, नहीं, दे प्रायोरिटीज आर रॉन्ग ना। अगर ये अगर नहीं मिल रहा था ना, तो साजिद खान को खिला देते दुबई में, साजिद खान Yeah. और रफ्तार होते, Why गेम not Sajid Khan? कंप्लीटली डिफरेंट, और फिर आपका स्टॉक से तीन तीन चार चार ओवर, यार वही ना, इनमें विल ही नहीं थी कि टीम ट्वीक करते ही, ये लोग बेवकूफों वाले क्रिकेट खेल रहे हैं और इसीलिए हम्म। हार रहे हैं। क्लैडिंग ऑफ फॉल्ट नहीं है ज्यादा, क्लैड मसला ये कि यू हैव टू डिजाइन द टीम पर कंडीशन बेसिकली। I mean, this is the thing. We talk about bowling being, Test cricket was also, we figured out a way to revive Test cricket from we were as low as you could be, and Sajid Khan was the catalyst for that. Why not give him a shot at some point to see what he does in limited in white ball cricket? He could have done it. So I have a bit of a minority view because, the sort of saying about how batting, and I agree 100% the batting is not a 350 batting lineup. Over the last few decades, actually, Pakistan has never been a great white ball batting team. It's just that our bowlers have been so extraordinary. They've always bailed us out of situations. And now, for the first time, we're seeing that our bowlers are not doing that. Even Australia, mein jaake, they did great, right? So we're chasing totals of 140, 160. Even if Saim didn't click, we probably would have won those matches. South Africa is a different, thing. So Jobat Saim is that we have lost the ability to take advantage or to even know how to take advantage of our home conditions. That's number one. Number two, like Mudassar is saying, is just because those bowlers excel in Australia, that does mean you have to have the same bowling lineup in Pakistan. You saw India had the blueprint, and so it's horses for courses. You have to know your own conditions. We don't know our own conditions. You just say a name, and these people have been selected automatically, so they're complacent. You had to have more spinners. So I think the bowling does
they've been, bailing us out again and again and again. They're finally not doing that. So they deserve some of the blame here. And like you said, we have to search, some of them are there like Sajid Khan, but you have to search for other guys, and you cannot just rely on these same guys all the time in all conditions. You have to be, flexible and be willing to adapt. It's the mindset, 100% the mindset. जैसे अभी आई डोंट नो हाउ ही इज गोना डू। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, जैसे अब्बास आफरीदी है, हम्म। उस ठीक ठाक बॉलर, लंबा है, वो पेस से एक दो बॉल उठा भी लेता है, उसका वेरिएशन बड़ी जबरदस्त है। हाँ। तो ऐसी पिचों पे ना यार वो सब पिटे हैं, बड़े बड़े बॉलर पिटे हैं, इंग्लैंड वाले वो तो उड़ा देंगे ना। जब लग पता चल गया, जब वो फ्लैट विकेट पे आए ना, अफगानिस्तान ने भी पीटा है उनको। हाँ। और इंग्लैंड में भी ये प्रॉब्लम था, प्रॉपर स्पिनर एक लेके आए थे, आदिल रशीद, ही बोल्ड फाइन। और बाकी दो स्पिनर कौन थे? लिविंगस्टन रूट करा रहा था, लिविंगस्टन करा रहा था, सब पिटे हैं वो। तो इंग्लैंड की भी सिलेक्शन ऑफ थी जब से मोइन अली गया है। दे डोंट हैव अ गुड स्पिन। तो हमें ना, बेंच हमारी बहुत छोटी है, बल्कि हमारे 11 में भी लोग कहते हैं यार ये 11 में भी एक आध बंदा हम लोग फालतू खिला देते हैं, 15 तो बात की बात है। इंग्लैंड और इंडिया और न्यूजीलैंड की तुम देखो, 15 का अगर वो स्क्वाड लेके आ रहे हैं, हम्म। वो खिलाते हैं 15, वो मैच के हिसाब से। बल्कि मेरी थ्योरी तो अभी है, अगर आप सेम 11 खिलाए जा रहे हो, आप, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर। ऑस्ट्रेलिया करती थी, Why do you keep losing? Yeah. ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली टीम हु यूजुअली गोज अनचेंज। मगर ज्यादातर इंडिया, न्यूजीलैंड काफी चेंज करती हैं और दे गेट द रिजल्ट्स। तो I mean, मेरे ख्याल से, जैसे मिसाल रहता है अब्बास आफरीदी, लगता है इस तरह क्रिकेटर एक, जैसे वो उसकी स्किल अभी थोड़ी कम है। जहांदाद खान थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो लेफ्टी है, वो एक बॉल बाहर निकालता है फिर अंदर ले आता है, जैसे फारूकी कराता है अफगानिस्तान का। तो थोड़ी अकल वाली बॉलिंग करानी पड़ेगी। अगर आप आ रहे हो, अब फ्लैट विकेटों पे सीधी सीधी बॉल फेंक रहे हो, वो अब नहीं चलती बॉलिंग। अब लोग काफी, पांड्या को देखो, उसने जो बाबर को आउट किया था, उसने बॉल बाहर फेंकी थी। पहले उसने बाहर फेंकी, वो फुल टॉस हुई, चौका लग गया। उसने अगली बॉल फिर उसे दूर दी है। तो यू कैन सी के अब बॉलिंग ना अकल से होती है, सिर्फ पेस से नहीं होती। तो क्रिकेट हैव चेंज एंड वी नीड टू फाइंड क्रिकेटर्स हु आर स्मार्ट yeah. बेसिकली। तो अभी चलें, उसी से हम थोड़ा सा एक सेगवे कर सकते हैं टुवर्ड्स द फैक्ट, अब जिस तरह आपको पता होगा कि सैटरडे से हमारी T20 सीरीज स्टार्ट हो रही है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसके बाद ओडीआई होगी, एंड दिस इज लाइक अ लॉन्ग सीरीज। आई थिंक 5 मैचेस हैं T20s के, और इसी तरह ओडीआई के भी काफी मैचेस हैं। इसमें आपने देखा होगा कि काफी अब चेंजेस हमें नजर आई हैं। जैसा T20 के अंदर बाबर एंड रिजवान हैव बीन रेस्टेड और ड्रॉप्ड, जो भी आप कहें, एंड वी गोना सी सम फ्रेश फेसेस। अब जो है अब्दुल समद जो है, उसका नाम है, देयर इज अ गाय, आई थिंक हसन खान या कोई नवाज, सपोजिटली हसन Akif हसन Javed भी है। आकिफ, आकिफ जब, या, आकिफ। सो क्या आप, यू थिंक दिस इज अ गुड मूव? ऑल्दो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि while we want to see fresh blood, but यहाँ पे ये ना हो कि, as we know, New Zealand has historically been a tough ground for us, कि ये ना हो कि results बुरे आए तो फिर वही हो कि जी चलो जी इन लड़कों को निकाल के फिर वापस back to Problem square one. forward, yeah. Where do you Yeah. see the balance between के to induct fresh blood, to induct fresh energy and a fresh mindset, but at the same time अगर आपने किया है तो give them a chance to prove Right. themselves, not Yeah. कि एक आपने सीरीज खिलाई और फिर आउट कर दिया। So I think that's the million-dollar question. Two questions that come to mind. Number one is, what has to happen for us to say radical change is warranted, right? Now, again, if you look in the last 12 months or recently, our history, we were in the bottom of the World Test Championship. Okay, we were in the 2023 Cricket World Cup, we were eliminated in the group stage. In the 2024 World Cup, eliminated in the group stage. In 2025 Champions Trophy, eliminated in the group stage. So the last three big tournaments, we were eliminated in the group stages. For me, that even though, yes, we lost just two matches, we lost to the two finalists, it's the manner in which we lost, just like Simon was saying. It was not like we were competitive. It was like it's an irritant. We were not remotely challenging the teams at any point. So for me, I think the first question, is radical change needed? Yes. The bigger question is, what does that mean? Does that mean that you just throw these guys into the deep end and see what happens? And then if they fail, bring back Babar and Rizwan? No, I think the thing to remember, Abhi, you're looking, you're saying, all right, Pakistan versus New Zealand, you have 5 T20s, 3 one-day internationals, and if they fail, you drop them. No, look at this in its totality. Remember, the New Zealand thing is just part of it. 2 months later, we play against Bangladesh, 3 T20s and 3 ODIs. Then in July, we play 3 T20s and 3 ODIs against the West Indies.
In August, we play against Afghanistan, three T20s. And then in September, we played three T20s and three ODIs versus Ireland. So you have to take that in its totality. You cannot condemn or promote someone just on the basis of performance in New Zealand. I mean, obviously, if you do well, but you cannot say absolutely is Bande ko nikalo just based on playing against one of the best teams in the world. Look at it in its totality. This is, if you're going to support some talent, and whether these guys are the best guys to try, I don't know. But the bottom line is, this is who they've put their money behind now. And so if you're giving them a chance, you tell them this is a sustained chance. Your series, your chance does not end with New Zealand. We have a long thing going. You have a long chance. This is your chance to prove yourself. You are not going to be dropped from the team if you have one bad innings. You get a chance to express yourself and play, and then see what happens. I always lament that we don't have Test cricket coming up, but so many, for me, meaningless white ball matches means that we have the opportunity to try people and see. I would not have done such radical changes, but if that's what they've done, that's what they've done. You have to give them an extended run and then see what happens. राइट और आई थिंक उसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि होपफुली इन जो नए प्लेयर्स हैं उनको एक रोल क्लैरिटी भी देनी चाहिए, सिर्फ ये बिल्कुल। ना कह दें कि जी चलो गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है हर, जिस तरह हमें पता है कि अब इतनी मॉडर्न डे क्रिकेट जो है उसमें हर पोजीशन के और हर सिनारियो के एक डिफरेंट रोल होता है। अब जिस तरह इंडिया ने केएल राहुल को एक डिफरेंट रोल दिया, शुरू में वो ओपनर रहता था और वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा था, लेकिन ही वाज की पार्ट टू देयर सक्सेस कि वो लोअर डाउन जो है जब विकेटें गिरती थी तो केएल राहुल जो था उसका था कि स्टेबिलिटी देनी और एंड तक लेके जाना है। तो हमारे भी जो प्लेयर्स हैं अब ये T20 टूर्नामेंट में, अब अब्दुल समद का एक डिफरेंट रोल होगा, जाहिर है उसको एज अ फिनिशर या एज अ पिंच हिटर का रोल होगा। अब ये जो नया लड़का आ रहा है हसन, उसका एक डिफरेंट रोल होगा। तो होपफुली दे गिव देम अ रोल कि भी तुम्हारा क्या रोल है, अगर कोई ओपनर जा रहा है तो उसने कितने टारगेट करने हैं पावर प्ले के अंदर। तो वो आई थिंक वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। An extended run, because again, I just want to ask, what happened to Khwaja Niazi? He हाँ looked good. हाँ, उसको उसका क्या? No, अगेन नियाजी, इरफान नियाजी की बात कर रहे हैं। Irfan Niazi, sorry. He was a हाँ, good इरफान नियाजी इज player. बैक, राइट? इरफान नियाजी इज बैक नाउ। या एक और मिसाल मैं देता हूँ। जी, अच्छा। मेरे ख्याल से मसला स्ट्रेटजी का ज्यादा है, प्लेयर्स का भी है, स्ट्रेटजी का उससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। मैं एक और मिसाल देता हूँ। अगर आप तुम केन विलियमसन और बाबर और स्मिथ के वाइट बॉल का रिकॉर्ड देखो ना, तो बाबर का रिकॉर्ड अभी भी बेहतर था। लोगों को यही नहीं पता कि विलियमसन ने अभी 3-4 साल बाद 100 किए। बाबर से भी पुरानी उसकी सेंचुरी है। उसका स्ट्राइक रेट 80s में, बाबर का 90s में था। स्मिथ की एवरेज भी बाबर से खराब थी। अभी मैं एक और जैसे अभी T20 खेलने गए जो जा रहे हैं ना न्यूजीलैंड, लास्ट टाइम आई थिंक बाबर ने 350 किए थे 5 T20 में, और किसी से बैटिंग ही नहीं हो रही थी वहां पे पूरी टीम से। Yeah. अब मसला ये, अब हम लोग याद है पहले भी, अब वो ही मुझे सबसे बड़ा मसला ये था कि पहले तो पागलों की तरह रिजवान बाबर को पहले 2 साल अच्छा खेला इन्होंने, आई डोंट डिसएग्री, 21 और 21-22 में 3 साल से नहीं चल रहे थे वो भाई। तो इन दोनों को तोड़ा क्यों नहीं, इन लोगों को अलग क्यों नहीं किया टॉप? अब तोड़ते भी किस तरह थे, वो एक वन डाउन आता था भाई। अब I know. करनी थी ना, तो आप रिजवान को रेस्ट दे के एक को खिलाते। अब किया अब आपने दोनों को निकाल दिया उन्होंने उठा के। आई डिसएग्री विद दिस अप्रोच। अगर इसी बाबर के साथ जिस तरह जल्मी यूनाइटेड के जो बैटिंग ऑर्डर होता है ना, कि एक की जगह होती है स्टीव स्मिथ, कोहली, रूट और ये विलियमसन, को पागल नहीं है बाकी टीमें जो बिठाती नहीं खिलाती हैं, इसीलिए खिलाती हैं, उन्हें पता है ये छक्के आते ही नहीं मारेंगे, मगर जब पिच खराब होगी, या अब जैसे फाइनल में वो इंडिया वाले के मैच में लोग कह रहे हैं वो फ्लॉप हो गया यार, मगर उसने 4 चौके मारे थे उसने, ही वाज लुकिंग गुड एक्चुअली। और किसी ने तो, किसी के बल्ले पे तो बॉल ही नहीं आ रही थी। 23 रन किए बाबर ने उस दिन, चक्कर ही बाकी पूरी टीम फारे। अगर वो 30 भी करता तो बाकी लोग कहते नहीं यार ये तो फ्लॉप हुआ है। तो ये प्रॉब्लम स्ट्रेटजी का है। अब बाबर की जगह बनती है T20 में भी। हाँ, आई यूज्ड टू डिसएग्री कि यार ये इनको साथ मत भेजो, ये इनको अलग अलग, जब आप रोटेट कर रहे हो तो स्ट्रेटजी भी रोटेट करो। रिजवान को आप रेस्ट दे दो। आप कह रहे हो कि प्लेइंग 11 में रिजवान और बाबर में से एक हो सकता है, आप ये कह रहे हो? तो मेरी पुरानी थ्योरी है कि T20 में ये दोनों आप एक ही एंकर खिलाते हो, और बाबर वाज फैंटास्टिक एंकर। Rizwan does not belong anymore. दुनिया में कम है। आपने एक और घुसेड़ लिया उसके सर के ऊपर। अब बाबर की एवरेज जमीन आसमान का फर्क है। प्री रिजवान उसकी एवरेज थी T20 की 50, विद रिजवान वो 30s में चली गई है। प्री रिजवान उसका स्ट्राइक रेट 138 था, अब स्ट्राइक रेट 120। तो क्लियरली ही स्ट्रगल विद रिजवान। ओवरऑल उसका सत्यानाश हो गया कैरियर के रिजवान की वजह से। अगर यही बाबर सराउंडेड होता विद फखर एंड साइमन वन डाउन और थोड़े बेहतर तेज प्लेयर,
उस पर प्रेशर नहीं होगा, वो चौका एक ओवर में चौका मारना, ही इज बेटर देन केन विलियमसन के, वो उसको ज्यादा फ्लुएंट है स्ट्रोक प्ले में अपने। तो इसलिए हमारा प्रॉब्लम है ही स्ट्रेटेजी का। मैं आई डिसएग्री विद दिस होलसेल चेंजेस। आप टीम ट्वीक करनी होती है, तीन दो और जो, क्योंकि हम हारे जा रहे हैं, वी हैव टू प्ले एटलीस्ट 2 to 3 new players in like in every game। ये नहीं कि हर मैच में नया 3 प्लेयर आ जाएंगे। एक प्लेयर बनाया, हाँ साइन, वो भी उसको अजीब तरीके से बनाया था कि उसको ऑस्ट्रेलिया में उठा के फेंक दिया टेस्ट मैच में, वो फ्लॉप था, वैसे ही बाहर हुआ था। चलो क्रेडिट फिर भी साइन को इन्होंने गेम दिए, और किसी को इतने गेम नहीं मिले जितने साइन को मिले, और वो बन गया। तो इस तरह ना आपको प्लेयर आइडेंटिफाई करें। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे प्लेयर हैं, आकिफ हो गया, अब्बास आफरीदी है, समद का मुझे नहीं पता, मगर लगता है कि उससे लंबे छक्के पाकिस्तान में कोई नहीं मार रहा अभी फिलहाल। डोमेस्टिक में तो बड़ा अच्छा हुआ, अभी सुना 4 छक्के मारे हैं 4 बॉलों पे उसने, अफरीदी को, शाहीन अफरीदी को। हाँ, मिसबा was very very high on Samad जब वो आए थे पिछले साल। he said this guy is the guy, so मिसबा ने भी यही बताया था कि टॉप 3 प्लेयर था, तो उन्होंने कहा छठे पे खेलो, और वो नेशनल कप में भी he was hitting like the longest sixes। तो इस तरह यार आइडेंटिफाई, नियाजी सुपर फिट बंदा है यार, फील्डर अच्छा है। तो इस तरह अगर आप पाकिस्तान में ना, अगर अकल या ईक्यू या फिटनेस, अगर आप ओवरऑल प्लेयर ढूंढो ना, तो 20-25 ज्यादा प्लेयर वैसे ही नहीं है। अगर वो इस काबिल है इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, वो 20-25 उनको कैरी करो यार, पहले अच्छे प्लेयर सिलेक्ट करो और उनको कैरी करो, उनको रोटेट करो, उनको टाइम दो। ये नहीं कि एक गेम खिलाया फिर वो नहीं चला तो फिर बाहर। अभी कामरान गुलाम इतनी मुश्किल से सेट हुआ था, 5वें पे उसने अच्छा खेला, फिर उसको 1 डाउन भेज दिया, उसको छेड़े जा रहे थे, उसको 1 डाउन भेजा, फिर उसको बाहर निकाल दिया। भाई कंसिस्टेंट होना एक जगह पे उसको। चले एक और चीज जो अभी हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी, सऊद ने आखिरी मैच में, इंडिया वाले मैच में 65 बनाया। हाँ, खराब पिच पे उसने 60 पे किए, और अब सऊद वनडे स्क्वाड ही में ही नहीं है। जो हाईएस्ट स्कोरर है आपके उस पे इस चैंपियंस ट्रॉफी का टीम से ही बाहर हो गया। फिर वो अजीब हरकतें हैं लोगों की यार। एक और चीज जब हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी, आप चूंकि रिजवान नहीं है और आपने आप आगा सलमान को अपने कैप्टन बना दिया T20 का, उस पर भी अब बात होगी। खैर दैट्स एक और एपिसोड, उस पर बात करेंगे जब ये हमारी स्टार्ट होगी, बिकॉज वो भी वाइल आगा सलमान ऑब्वियसली हैज एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ रियली वेल इन द ODI स्क्वाड, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर्स बन गया है। T20 में आई थिंक द जूरी इज स्टिल आउट, सो होपफुली ही कैन इम्प्रूव। उसका अभी तक जो स्टार्ट है वो इतना कोई कन्विंसिंग नहीं है, बिकॉज अगेन बात वही है कि कैप्टन तो आपने बना दिया है, एक तो एक्सपीरियंस नहीं है उसका कैप्टनसी का, और दूसरा कैप्टन हैज टू जस्टिफाई हिज ओन पोजीशन इन द टीम एज वेल। तो चलें उसकी उसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, व्हिच आई एग्री। हुआ ये था कि शादाब को कैप्टन नहीं बना सकते थे, तो शादाब आया वाइस कैप्टन, ताकि हंगामा नहीं हुआ ना। इवन बहुत से लोग समझते हैं T20 में शादाब शुड बी इन द स्क्वाड, ही टैंक बिग टाइम इन ODI, ठीक है ना। तो थ्योरी ये है कि अगर शादाब चल गया ना, तो ही विल बी द कैप्टन। कैप्टनसी का एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो है उसका, आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड में एज अ प्लेयर चलें, अभी आउट ऑफ फॉर्म। वो कह रहे ना शादाब के लिए इसलिए आगा को बनाया, क्योंकि आगा का अभी बेचारा T20 में क्लिक नहीं हो रहा। तो अगर आगा नहीं चला और शादाब ने रन कर दिए, तो ही विल बी द नेक्स्ट कैप्टन, एंड आई एग्री। आई थिंक दैट्स व्हाट द प्लान इज, दैट्स व्हाट इट लुक्स लाइक। क्योंकि वाइस कैप्टन he shouldn't be in the team। होपफुली अभी पता चलेगा कि क्या इम्प्रूव हुआ है कि नहीं। ऑल्दो अगेन न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड कोई स्पिन फ्रेंडली तो कोई खास जगह है नहीं, छोटे ग्राउंड्स होने हैं, तो मार तो प्रोबेबली पड़ेगी उसको, जो भी स्पिनर्स होंगे। भाई सुने न्यूजीलैंड की अभी हम देखेंगे, मेरे ख्याल से स्क्वाड चेंज किया उन्होंने फिलिप्स को नहीं, फिलिप्स को ड्रेस दिया उन्होंने, ग्लेन फिलिप्स को, और बाकी तो उन्होंने तकरीबन अच्छे जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं वही खिला रहे हैं यार। मगर ये क्या मजा, अभी वो बेचारे फाइनल खेले हैं, अभी तो वो डिप्रेशन में होंगे, वो फिर सीरीज आगे थोड़ा गैप तो होना चाहिए यार। They need a mood lifter, so what better is there than to play Pakistan? ये तो फिर भी कम उनका डिप्रेशन में होंगे, जो उन बेचारों के साथ इंग्लैंड के साथ ODI 2019 के फाइनल में हुआ था, वो वहां से निकलना बहुत मुश्किल है यार। वो जीता हुआ गेम और टाई हो जाना, और फिर वो जो सबसे जो आई थिंक जो स्ट्रेंज जो गेम था ना, जो जो आई थिंक जो स्टैंड आउट गेम है, वो है अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। यार इंग्लैंड बाहर कर दिया उन्होंने, बताओ यार। इट वाज अ बिग डील कि अच्छी ऑन पेपर पे, अच्छा कंडीशन से बड़ा फर्क होता है। इसी टीम को
इंग्लैंड और अफगानिस्तान को उठाओ और इनको खिला दो, आप इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में नहीं जीतेगी अफगानिस्तान, हाँ क्योंकि मतलब उनको देर बहुत स्पिन फ्रेंडली और फ्लैट पिचेस में उनके बैट्समैन भी, अब पहले होता था कि अफगानिस्तान यूज्ड टू रियली रिलाई ऑन द स्पिनर्स, बट अभी रिसेंटली उनका जो इब्राहिम जादरान है वो बड़ा हाँ अच्छा कर रहा है, वो गुरबाज जो है वो कभी कभार चल जाता है, सो आई थिंक दे बिकम रियली कंपेटिटिव नाउ। ऑलराउंडर आ गया उनके पास यार, वो छक्के मार रहा है, उमर जई नहीं, उसने पहले पाकिस्तान और उनकी अच्छी सीरीज होगी, आई थिंक देर हाँ, पाकिस्तान और वो एक एक 50-50 वाली गेम बन गई है अब उनके साथ अब। yep. इन पिचों पे दे आर द ट्रिकी टीम, स्पेशली हम्म, अगर उनको, अगर दुबई शारजा में अगर वो खेलेंगे उनको तो हराना मुश्किल हो जाता है शारजा वगैरह। शारजा में तो उन्होंने हराया था सीरीज हमें। हाँ, उनका होम ग्राउंड है तो पता हाँ, नहीं कहाँ खेल कहाँ रहे हम लोग अफगानिस्तान से, दुबई में। पाकिस्तान में ही होगा, पाकिस्तान में होगा, I think, नहीं? चलो शुक्र है वो दुबई में नहीं है। Well, remember also at some point in all these matches, Saim will be back. You know, I don't know या if you've been seeing the उसकी videos. वीडियोस Saim आनी शुरू is हो गई making हैं, it back. या So he will come back. So that's good to see. या यार या अभी चूंकि बात हो रही है, एक बड़ी मजेदार चीज हुई है जो मुझे ना, मैं भी 2 साल से अंडर 19 के, हम पर तो हम सब ने देखे हैं कि थोड़ी हार्ड लक हुई है कि अंडर 19 एक जीता हुआ मैच ऑस्ट्रेलिया से हारी है, जिसमें अली रजा बॉल कर रहा था, और उन्होंने इंडिया को अंडर 19 में शायद 2 दफा हरा चुके हैं पिछले 3 मीट्स में ना, और काफी अच्छे गेम्स हुए, सुफियान मुकीम भी था। तो अभी उनमें से ना 3-4 बैट्समैन बहुत ही अच्छे थे, अजान हुए, शुमैल, फिर एक ऑलराउंडर है, वो काफी सॉलिड ऑलराउंडर है, वो भी लेफ्टी है, तो 4-5 लेफ्टी थे बहरहाल। अभी ये पहली दफा इन्होंने सीजन खेला है डोमेस्टिक का, लॉन्ग फॉर्मेट जो कायद आजम ट्रॉफी, उसमें जो टॉप 2 स्कोरर है ना वो वही है अंडर 19 के, अजान ओवैस और एक और बंदा है। और फिर बॉलर बॉलर बड़े अच्छे हैं, ये एक जीशान है और एक अली रजा है, तो ये 4-5 लड़के अंडर 19 के बड़े अच्छे हैं। आई थिंक दे नीड टू बी फास्ट ट्रैक, और ये बिल्कुल सही खेल रहे हैं कि अभी डोमेस्टिक में गए। अभी बस इनके साथ ये हैंड हुआ है कि अभी T20 डोमेस्टिक शुरू हो रहा है, उसमें नाम नहीं है इन लोगों का, थोड़ी ज्यादती है। आई थिंक जो अंडर 19 के 5-6 खिलाड़ी बहुत ही अच्छे थे, अभी दो तीन बैट्समैन है, 2-3 बॉलर हैं, इनको PSL के स्क्वाड्स में लाए हैं। अभी ये ऊपर टैलेंट कितना था वो ट्राई हो गया है, तो ये मेरे थोड़ी है होप कि ये अंडर 19 के 5-6 लड़के बड़े अच्छे थे, वो इनमें से कुछ निकल ना हो आए। जाए। उबैद जैसे नसीम का भाई है, वो जो उबैद है, हाँ, उसमें थोड़ी जान है अभी, तो इस तरह लोग पिक करें हैं, 4-5 प्लेयर अच्छे थे उनमें काफी। जिस तरह साइम को ये यंग इन्होंने ड्राफ्ट किया था ना, ये इंडिया ने जिस तरह आपको जायसवाल को लेकर आए हैं, तो हाँ उस तरह ये है कि एक दो भी अच्छे आपके निकल आए तो ज़ाहिर है आपके, यू हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ यूथ एंड yeah. एक्सपीरियंस। और हमें हमें जरूरी है, वो बड़ा अच्छा है यार आपका ऑलराउंडर, जो जो बॉलिंग ऑलराउंडर है यार, अरफात मिन्हास से कौन है, हाँ 20 साल का है वो, उसको नहीं। आत्मीनाज से अभी कोई कोई शहजाद का वो कोई बता रहा था कि कोई। वो मीडियम पेसर, वो अच्छा है, शहजाद है। अरफात मिन्हास जो, अरफात मिन्हास तो चाहिए हमें यार, जो Spinner and हाँ, बैट एट 7 वो करता है, वही उसको हमने वो आया जडेजा जडेजा टाइप का उसका रोल है बेसिकली बिल्कुल, ना, yeah. स्पिन भी तो करा लेता है और हमें वो 2 चाहिए भाई एशिया के लिए, अभी यहाँ से एक भी नहीं है, सिर्फ अबरार है, ही कैन नॉट बैट, तो यू कैन चलें ओनली। जी, उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें ये मिलेंगे प्लेयर्स, और while again once again it's been a disappointing last couple of weeks, but again होप करते हैं कि पीसीबी और हमारी जो मैनेजमेंट है ओवरऑल, हमारा बोर्ड गलतियों से सीखेगा। मुदस्सिर वाज राइट कि लर्न ही लर्न हुआ जा रहा है पिछले 2-3 सालों से, अब विन की बारी आ गई है, सो होपफुली यू नो वीव रीच द बॉटम, हम कहते रहते हैं लेकिन फिर कोई ऐसी Rock चीज हो bottom. जाती है अरे हम तो बॉटम पे जाके ना उसमें I want बोरिंग कर रहे हैं, बॉटम पे लाइट खोद रहे हैं उसको, और मसीह सर। so one thing I want to just say, as we wind up is that given how well Pakistan's doing, it's been suggested to me by some of our fans that there's no point following Pakistan cricket, and maybe it's time for us to wind this show down. And my response to that is there are fans all over Pakistan, all over the world. No matter what this team does, we're going to support them. That's just in our DNA. And misery loves company. And so if the team is playing, we're going to be supporting them. If they're doing great, we're going to share in that joy. If they're doing poorly, we're going to help make the misery a little bit less unbearable for you. So we're not going anywhere. Yeah, Just to let you yeah, know. Yeah. yeah. और अगेन वो क्या कहते हैं, उर्दू में भी कहते हैं कि पेबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, कि Yeah, बेसिकली बहुत मुश्किल हो रही है ये आपके ये उसका मतलब ये है कि That's okay. इन इंग्लिश विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। Yes, yes, yes. तो Yeah. उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर इज ब्राइटर देन आवर प्रेजेंट, सो It's always dark before dawn.
यप। Yeah. चलें जी, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। अगेन होप करेंगे कि अभी जो हमारी सीरीज आ रही है न्यूजीलैंड में, उसमें दोबारा आपके साथ कनेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह Okay. हाफिज।